Okay, Raima, because this question has to do with DCPIP, I'll quickly recall DCPIP वाला experiment. ठीक है, एक्चुअली आप लोग भी साथ साथ रिवाइज कर लोगे डीसीपीआईपी में क्या हो रहा होता है. सो वी नो दैट डीसीपीआईपी हो गया या मेथिलीन ब्लू हो गया. मेथिलीन ब्लू, आई डोंट नो इफ इट्स मेथिलीन और मेथिलीन, बट डीसीपीआईपी and this methylene blue, they are originally blue in color. ठीक है. Now we have a test tube जिसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट सॉल्यूशन है. So we have a green chloroplast solution. This is your chloroplast solution. So I hope my big elephant writing is not an issue for you guys, because I have figured out a solution for my cervical, which is to find a tablet, use a laptop stand for a tablet stand. तो उस पे कुछ इस तरह की राइटिंग होती है. जो आप लोगों को नोट्स मिलेंगे उसमें मेरी एलिगेटर जैसी राइटिंग नहीं होगी, उसमें नीट राइटिंग होगी. डोंट वरी अबाउट दैट. So the chloroplast solution, we add DCPIP in it, which is blue in color. And once we add DCPIP, like a blue color to a green color, कुछ purplish dark bluish solution बन जाएगा, which is something like, let me figure out a nice color. Something like, let's say this. So हमारे पास DCPIP plus a chloroplast solution looks like this. ठीक है, so it has both your DCPIP and chloroplast. ना हमारे पास क्लोरोप्लास्ट सोल्यूशन है. क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास फोटो सिस्टम होते हैं. फोटो सिस्टम क्या करते हैं, फोटो सिस्टम जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को. और उस लाइट को जब वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हमारे पास पूरा क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है. एंड लाइट रिएक्शन में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, हमारे पास NADPH और यू कैन से रिड्यूस्ड NADP बनता है. एंड ATP एंड ऑक्सीजन ये सब साथ में बन रहे होते हैं. In this particular reaction, we are concerned with NADPH because what happens is that this DCPIP can act as an artificial proton acceptor. So once NADPH is made because of a light reaction taking place, what happens is that the DCPIP would accept electrons from NADPH, undergo reduction, and become reduced DCPIP. And reduced DCPIP is colorless. तो हमारे पास decolorization होगी. So we would be back to our original color. हमारे पास DCPIP का जो blue color effect है वो चला जाएगा. And this decolorization would tell us that a light reaction has taken place, or the chloroplast is responsible for synthesizing NADPH, oxygen वगैरह वगैरह. NADPH किधर से आ गया? Can you tell me, Ryan, non-cyclic photophosphorylation के products क्या होते हैं? What happens in non-cyclic photophosphorylation? Unmute yourself and tell me what happens in non-cyclic photophosphorylation. The light, that's a type of the light reaction. उसके अंदर we get ATP oxygen We get and ATP and oxygen, NADPH ठीक है. and NADPH. NAD. NADPH बनता है हमारे पास at the end of the non-cyclic photophosphorylation, because NADP reductase acts as the final electron acceptor and it combines NADP with electrons and protons, right? This is what happens. So at the Yeah. end of NADP, at the end of light reaction, would I have NADPH? NADPH बना है तो इसका मतलब है कि light reaction हुआ है. Is that correct? Yes. Now, अगर हमारे पास NADPH बना है as a result of light reaction, DCPIP and methylene blue, they act as proton acceptors. ठीक है, ये proton, they are artificial proton acceptors. The DCPIP would accept the proton present in NADPH. तो हमारे पास कुछ ये चीज हो जाएगी. DCPIP combines with the NADPH we got from light reaction to form reduce DCPIP, and we would regenerate NAD. NADP. ठीक D. है.
हमारे बस पास जैसे, जी जी, आई गॉट द प्रोसेस। मुझे कंफ्यूजन इसमें हो रही है कि लाइक क्लोरोप्लास्ट है तो मतलब जरूरी है कि लाइट रिएक्शन हो चुका हो ऑलरेडी, एंड लाइक NADPH वुड बी प्रेजेंट, दिस पार्ट आई एम कंफ्यूज्ड अच्छा अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, इट हैज टू डू विद डीसीपीआईबी। और आपका जो क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन है ना कि पहले से ही क्लोरोप्लास्ट में एनएडीपीएच प्रेजेंट हो लाइट रिएक्शन से पहले ही, या या कि पहले भी हो रहा हो या रिएक्शन। वो अभी इस क्वेश्चन का पहला ही क्वेश्चन है, सो लेट्स सी। ओके। Okay. The light dependent stage of photosynthesis occurs within chloroplasts. In this stage, electrons are emitted from the chlorophyll A molecules and passed to electron acceptors, जिनको हम ETC भी बुलाते हैं. If a redox indicator, such as DCP-IP, is added to a suspension of illuminated chloroplasts, electrons will be transferred to DCP-IP, causing the color of the DCP-IP to change from blue to colorless. इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों DCP-IP एक्सेप्ट करता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से NADP इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर रही होती है. A student investigated the effect of the wavelength of light, or you can say color of light, on the rate of photosynthesis. DCP-IP was added to 3 colorimeter tubes. What is colorimeter tubes, or what is colorimetry? It basically tells us the amount of light absorbed or transmitted through a solution. कितनी लाइट एक सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर रही है, या फिर कितनी लाइट एक सॉल्यूशन से ट्रांसमिट हो रही है, ये हमें कलरीमीट्री के थ्रू पता चलता है. इट्स अ डिवाइस जिसके थ्रू वी कैन क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली फिगर आउट हाउ मच लाइट इज बीइंग एब्जॉर्ब और ट्रांसमिटेड थ्रू अ solution. So DCPIP was added to 3 colorimeter tubes, each containing a suspension of chloroplast. So we have 3 tubes, तीनों में हमारे पास chloroplast की solution या suspension थी. The chloroplast suspension were kept in the dark until required. So the chloroplast solutions or suspensions were kept in the dark until required. The colorimeter tubes were each exposed to light of a different color, red, blue or green. तीनों tubes को हमने different light से expose किया. Later on, the intensity of light was the same for all tubes and each was exposed to light for 4 minutes. All other conditions were kept the same. The absorbance of each chloroplast suspension was measured at 1 minute intervals using a colorimeter. तो हमने 3 सस्पेंशन ली क्लोरोप्लास्ट की, उनको कुछ घंटों के लिए, कुछ देर के लिए हमने कंप्लीट डार्कनेस में रखा. And after a few hours of keeping those suspensions in complete darkness, we expose the tubes to a different light. एक ट्यूब को हमने रेड लाइट के सामने एक्सपोज किया, एक को ब्लू लाइट के सामने एक्सपोज किया और एक को ग्रीन लाइट के सामने एक्सपोज किया. एंड डिफरेंट कलर ऑफ लाइट या फिर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट पे हमने रेट ऑफ एब्जॉर्बेंस मॉनिटर किया कि हमारे पास कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है अक्रॉस ईच सस्पेंशन. सेटअप समझ आ गया? एक्सपेरिमेंट सेटअप को लेके कोई क्वेश्चन? इज दिस क्लियर सो फार? Yes, can you repeat? ओके, आई रिपीट. हमारे पास हमने क्लोरोप्लास्ट की सस्पेंशंस ली, ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट सस्पेंशंस लिए हमने, ठीक है, सेंट्रिफिकेशन करके. और हमने तीन डिफरेंट जो ये क्लोरोप्लास्ट, सॉरी, जो हमने 3 डिफरेंट ट्यूब्स में क्लोरोप्लास्ट सस्पेंशंस लिए उनमें हमने डीसीपीआईपी ऐड कर दिया. सो वी हैव थ्री ट्यूब्स और तीनों ट्यूब्स में क्या है? डीसीपीआईपी और क्लोरोप्लास्ट है. इन तीनों ट्यूब्स को हमने कंप्लीट डार्कनेस में रख दिया. फॉर लाइक अ फ्यू आवर्स वी कीप दिस क्लोरोप्लास्ट सस्पेंशन प्लस डीसीपीआईपी इन कंप्लीट डार्कनेस. ठीक है. कुछ घंटों के बाद जब हमने इनको अंधेरे से निकाला, डार्कनेस से निकाला, हमने इन तीनों को डिफरेंट लाइट्स के सामने एक्सपोज किया. एक को हमने रेड लाइट के सामने रखा, एक को ब्लू के सामने रखा, एक को ग्रीन के सामने रखा. लाइट इंटेंसिटी या लाइट के जो यूनिट्स थे वो सेम थे. हमने खाली डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट को ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट किस तरह से एब्जॉर्बेंस को अफेक्ट करते हैं. एब्जॉर्बेंस क्या होती है? कितनी लाइट एक सॉल्यूशन से पास हो रही है. हमें ये देखना है कि रेड लाइट कितनी पास हो रही है, ब्लू लाइट कितनी पास हो रही है, ग्रीन लाइट कितनी पास हो रही है. ठीक है. इज दिस क्लियर नाउ टू ऑल ऑफ यू? अगर कोई भी क्वेश्चन है यू गाइस कैन आस्क. परफेक्ट.
हमने फिर जो भी हमारे पास एब्जॉर्बेंस पर मिनट के रिजल्ट्स हमने कैलकुलेट किए थ्रू द कलरीमीटर, हमने वो प्लॉट कर दिए ग्राफ पे। सो ग्रीन लाइट के प्लॉट कर दिए, ब्लू लाइट के प्लॉट कर दिए, रेड लाइट के प्लॉट कर दिया। ऑन द वाई एक्सिस वी हैव द एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस क्या है? कितनी लाइट एब्जॉर्ब की सोल्यूशन ने, या कितनी लाइट्स क्या कहते हैं ट्रांसमिट हुई, कितनी लाइट ट्रांसमिट हुई अक्रॉस द सोल्यूशन। तो एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट और द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू अ सोल्यूशन इज द सेम थिंग। तीनों में अलग कलर्स टेस्ट कर रहे हैं। यस, तीनों में डिफरेंट लाइट कलर्स हमने एक्सपोज किए हैं। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब को हमने ग्रीन लाइट के सामने रखा, एक टेस्ट ट्यूब को ब्लू लाइट के सामने रखा, एक को रेड लाइट के सामने रखा, बिकॉज ऑब्वियसली लाइट, इन तीनों लाइट की वेवलेंथ डिफरेंट होगी। तो हम बस ये देखना चाह रहे हैं कि वेवलेंथ किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है एब्जॉर्बेंस को। ठीक है, explain why the chloroplast suspensions were kept in the dark until required। हमने पहले कुछ घंटों के लिए क्लोरोप्लास्ट को एब्सोल्यूट डार्कनेस में क्यों रखा? What would be the reasoning for that? Correct. सो बेसिकली जब हम डार्कनेस में रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास बेसिकली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन नहीं होगा, लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी, बिकॉज डार्कनेस है, लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो रही, लाइट प्रेजेंट नहीं है, तो हमारे पास फोटो एक्टिवेशन नहीं होगी, हमारे पास लाइट डिपेंडेंट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सो लाइट इज एब्सेंट एंड थस light dependent stage of photosynthesis stops। एंड यू कैन फर्दर elaborate। वैसे ये एक मार्क का है तो इतनी elaboration की जरूरत नहीं है, बट ये अगर 2 मार्क्स का आता, सो फॉर द सेकेंड मार्क वुड हैव बीन फॉर द एक्सप्लेनेशन, एंड एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखते हैं? नो रिड्यूस्ड NADP प्रोड्यूस, या अगर फॉर एग्जाम्पल वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जानना चाहते हैं। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखो, आप दो चीजों से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फिगर आउट कर सकते हो। या तो आप कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी यूज अप हुई है उससे फिगर आउट कर सकते हो, या आप फिगर आउट कर सकते हो कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है। सो अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को वो टेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो आप कहते हैं कि लाइट इज एब्सेंट एंड थस लाइट डिपेंडेंट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स और द फोटोसिंथेसिस रेट reduces because oxygen is not evolving, because आपका लाइट डिपेंडेंट स्टेज नहीं हो रहा। यहाँ पर हम क्योंकि डीसीपीआईपी के एस्पेक्ट से बात करें तो रिड्यूस्ड एनएडीपी हमारा कंसर्न है। अगर हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैलकुलेट कर रहे होते, कोई सिमिलर क्वेश्चन आता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर, सो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हम कैसे फिगर आउट करते हैं? ऑक्सीजन इवॉल्व कितनी हुई है उससे। सो हमारे पास ऑक्सीजन इवॉल्व होना रुक जाती, इस तरह से हमें पता चलता कि लाइट डिपेंडेंट स्टेज जो है वो नहीं हो रही। इज दिस क्लियर? सो ये क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी आ सकता है, एंड इन दैट केस आप बोलते नो ऑक्सीजन वुड बी प्रोड्यूस्ड। इज दिस क्लियर? एंड फॉर दिस क्वेश्चन, अगर ये सेकंड 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो आप ये सेकंड मार्किंग पॉइंट लिखते एक्सप्लेनेशन के तौर पे। यहाँ पर दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, बट ऑब्वियसली आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चीज की, इसलिए मैंने ब्रैकेट में ये ऐड कर दिया इलेबोरेशन। Okay, describe the results shown in figure 7.1। एक सेकेंड, लेट मी सी द क्वेश्चन। रीजनिंग यही होगी हमारे पास। देखो, डार्क में अगर हमने रख दिया तो हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डार्क में कम हो जाएगा ना, लाइट डिपेंडेंट स्टेज नहीं होगी डार्कनेस में। और जब लाइट डिपेंडेंट स्टेज नहीं होगी, वो हम कैसे, क्या एम्पेरिकल प्रूफ आपके पास क्या है कि लाइट डिपेंडेंस चाहिए? हमें दिखाई तो नहीं दे रहा ना कि क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है, हमें कोई ना कोई हमारे पास सॉलिड ऑब्जर्वेबल प्रूफ होना चाहिए। तो हमारे पास ऑब्जर्वेबल प्रूफ क्या होगा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होता है डार्कनेस में? हमारे पास ऑब्जर्वेबल प्रूफ ये होगा कि कम ऑक्सीजन बन रही होगी, कम ऑक्सीजन हम कलेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, मिस मैं मतलब ये है कि जैसे NADPH नहीं होगा तो इट्स लाइक नॉट गोइंग टू रिड्यूस द DCPIP, लेकिन ऑक्सीजन ना होने से मतलब व्हाट्स द थिंग दैट्स हैपनिंग जिसकी हाउ वजह डू वी से। कैलकुलेट रेट ऑफ अ रिएक्शन केमिस्ट्री में? रेट ऑफ द रिएक्शन किस तरह से, फॉर्मूला क्या होता है रेट ऑफ द रिएक्शन का केमिस्ट्री में? volume of product formed or the reactant used divided by the time.
प्रोडक्ट अपॉन टाइम होता है, राइट? अगर हमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैलकुलेट करना है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं या ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टाइम करते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टाइम। इज दैट करेक्ट? यस मैम। सो हमारे पास अगर मैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को मॉनिटर कर रही हूँ और मेरी अगर ऑक्सीजन कम बन रही है या ऑक्सीजन बन ही नहीं रही है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास लाइट डिपेंडेंट स्टेज नहीं हो रही है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है? सो इस यहाँ पे यस। हमें रिड्यूस्ड एनएडीपी डिकलराइज नहीं कर रहा होगा डीसीपीआईपी को। और अगर दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन वाला सेटअप होता है तो उसमें ऑक्सीजन कम बन रही होगी। ऑक्सीजन क्यों कम बन रही होगी? क्योंकि हमारे पास लेस फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा होगा या लेस लाइट डिपेंडेंट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, ठीक है? मेक सेंस मैम, यस, जजाकल्लाह खैर। परफेक्ट। डिस्क्राइब द रिजल्ट स्टूडेंट फिगर 7.1। डिस्क्राइब के क्वेश्चंस में फुल मार्क्स मिल सकता है, भले बगैर पढ़े पेपर देने जाओ, बाकी पूरे पेपर में 0 आ जाए, बट डिस्क्राइब के पेपर में फुल मार्क्स मिल सकते हैं। क्यों मिल सकते हैं? बिकॉज डिस्क्राइब में द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स यू टू आंसर लाइक अ लेमैन। जो दिखाई दे रहा है बस वो बताना है। इसमें कोई बायोलॉजी नहीं झाड़नी, हमें कोई नहीं बतानी, रीजनिंग नहीं देनी, एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। वी जस्ट हैव टू डिस्क्राइब व्हाट वी कैन सी ऑन द ग्राफ। सो यू नीड टू आंसर दिस एज इफ आप पहली दफा एक बायो के पेपर को देख रहे हो, ठीक है? और आपको कुछ नहीं समझ आ रहा सिवाय के लाइंस हैं और नंबर्स हैं, और आप 7th ग्रेडर हो और आपने बस एक ग्राफ को एक्सप्लेन करना है। दिस इज हाउ यू अप्रोच अ डिस्क्राइब क्वेश्चन। यू जस्ट नीड टू टेल व्हाट यू कैन सी, डोंट गो इनटू व्हाट यू कैन नॉट सी, ठीक है? ना हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्या ट्रेंड्स हमें नजर आ रहे हैं? ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, रेड लाइट, इन सबकी एब्जॉर्बेंस डिक्रीज हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डू यू ऑल एग्री कि एक डिक्रीजिंग ट्रेंड है तीनों का? सो एक हमें जनरलाइज ट्रेंड नजर आ गया। Yes, you have to prove that you're not andhe. Exactly. You just have to prove in a describe graph, a describe question that you're not andhe. Now, and it is for graphical questions, for table questions, जहां पर describe आ गया, किसी फिगर को देख के describe करना है, किसी ग्राफ को देख के describe करना है, जो नजर आ रहा है वो लिखना है, that's it. ओके हमें सबसे पहली चीज क्या नजर आ रही है? ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, रेड लाइट, तीनों की एब्जॉर्बेंस इज डिक्रीजिंग ओवर टाइम। सो एक हमें जनरलाइज पैटर्न ये नजर आ गया that the absorbance of all colors of light decreases over time, ठीक है ना? हमारे पास एक हमने जनरलाइज ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमारे पास दूसरा हमें क्या बताना है, हमें कंपैरेटिव डेटा देना है। हमें नजर आ रहा है कि सब तीनों ग्राफ्स डिफरेंट हैं, तीनों का जो डिक्लाइन है वो डिफरेंट है। तो हमारे पास इफ वी सी ग्रेटेस्ट डिक्लाइन किसका आ रहा है, ग्रेटेस्ट डिक्लाइन जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है रेड लाइट का, दैट the red light's absorbance decreases the most, whereas the green light's absorbance does not decrease as much, or we can say that green light exhibits highest absorbance, whereas the red light exhibits the or shows a decrease in the rate of absorbance. तो हम ये comparative data दे सकते हैं for green and red. We would say green light exhibits maximum absorbance as it decreases, as its absorbance decreases the least. एंड ग्राफ है तो कोई ना कोई हमारे पास हम न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल डेटा भी देते हैं। नाउ अगर हम देखें ग्रीन लाइट कितनी रिड्यूस हो रही है, ग्रीन लाइट इज गोइंग फ्रॉम, सो वी हैव 1.42, 1.44, 1.46, 1.48, दिस इज 1.44। और अगर हम रेड लाइट का देखें, रेड लाइट इज व्हाट, रेड लाइट इज 0.7,
अगर ब्लू लाइट का भी देना चाहो, ब्लू लाइट का भी लिख सकते हैं 0.9। स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम था, तो हम तीनों के लिए कह सकते हैं दैट वी कुड से the absorbance of red decreases from 1.5 to 0.7, of blue it decreases from 1.5 to 0.9, and of green it decreases from 1.5 to 1.44. Easy 3 marks. Is this clear? Anything else that you can see about this graph? हम ये लिख सकते हैं कि तीनों का जो डिक्रीज है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो जिसकी मैथ अच्छी है वो ये कह सकता है कि तीनों का एक कांस्टेंट रेट ऑफ डिक्रीज है, क्योंकि ग्रेडियंट हमारे पास कांस्टेंट है, कोई हमारे पास कर्व नहीं है, तो हमारे पास ग्रेडियंट चेंज नहीं हो रहा, रेट चेंज नहीं हो रहा, रेट ऑफ डिक्रीज इज कांस्टेंट फॉर ऑल थ्री ऑफ देम। ये भी बात की जा सकती है, बट दैट गोज इनटू द वेरी मैथमेटिकल टेरिटरी, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया, बट यू कैन ऑल्सो मेंशन दिस दैट the decrease in absorbance or the rate of decrease in absorbance is constant। तो ये भी हम बात कर सकते हैं, ये भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, सो डिस्क्राइब के ग्राफ्स तो हमारे पास आसान होता है। With reference to the light Can you dependence, re-explain this point? Rate wala, because it's like a straight line, that's why. yes yes, हमारे पास रेट है, रेट क्या होता है? Anything against time, rate of absorbance अगेंस्ट रेट ऑफ एब्जॉर्बेंस क्या होगा? एब्जॉर्बेंस अपॉन टाइम। अगर एब्जॉर्बेंस अपॉन टाइम का ग्राफ है और हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमारे पास जो रेट ऑफ डिक्रीज है दैट इज कांस्टेंट, राइट? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। Yes, Miss Khan. सबको क्लियर है ये वाली बात? Now, with reference to the light dependent stage of photosynthesis, explain the differences between the results shown in figure 7.1 for red light and for green light। हमें किस चीज को रेफर करना है? To the light dependent stage of photosynthesis, and we have to explain the differences between the results shown in figure 7.1 for red light and for green light। अच्छा, पहले मैं कुछ लोगों के आंसर्स कुछ दे रही थी चैट बॉक्स में जो आए हुए थे, लेट मी डू दैट अगेन। अच्छा, अभी आई थिंक सो सब हैं, आई एम सो सॉरी आप लोगों के 5 मिनट वेस्ट हो गए, बट अच्छा, सबसे पहले कि हम क्या करेंगे आज की क्लास में, हम ये वाला क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज कुछ एम्बिग्विटीज थी जो बच्चों ने मुझे भेजी थी आफ्टर यस्टरडेज क्लास रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। सो मैं पूरा एक्सपेरिमेंट स्टेप बाय स्टेप पहले कराऊंगी कि ये एक्सपेरिमेंट हमारा पूछ नहीं रहे, वो बेसिकली ग्राफ हमसे पूछ रहे हैं, बट आई विल टीच दिस कलरीमेट्री एंड एब्जॉर्बेंस वाला एक्सपेरिमेंट, ताकि अगर P5 में भी ऐसा कुछ हो तो हमें पहले से ये प्री रिक्विजिट नॉलेज हो। सो इन दिस क्वेश्चन दे आर टेस्टिंग टू एक्सपेरिमेंटल थिंग्स, एक वो कलरीमेट्री टेस्ट कर रहे हैं और एक आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एब्जॉर्बेंस टेस्ट कर रहे हैं। कलरीमेट्री में क्या होता है कि हमारे पास किसी सॉल्यूशन का जो कलर चेंज हो रहा होता है, हम वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं या उसे क्वांटिफाई कर रहे होते हैं या क्वालिटेटिवली देख रहे होते हैं इन कलरीमेट्री। एंड एब्जॉर्बेंस क्या है? एब्जॉर्बेंस इज हाउ मच लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में मेरे पास क्लियर वाटर है, या मेरे पास लेट्स से इस टेस्ट ट्यूब में कुछ भी नहीं है, और अगर मैं एक लाइट इसके थ्रू पास करूंगी तो जो हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे 99 टू 100% जितनी लाइट एंटर कर रही है उतनी ही लाइट एग्जिट कर रही होगी या ट्रांसमिट हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज प्रेजेंट नहीं है जो इस लाइट को एब्जॉर्ब करे। इसकी एग्जांपल ऐसे समझो, जो विंडो होती है, अगर विंडो क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, तो जितनी सनलाइट है वो पूरी की पूरी विंडो के अक्रॉस आ रही होती है। बट लेट्स से हम उस विंडो पे कोई शेड लगा दें, बहुत से लोग ब्लैक शेड्स लगा देते हैं या टिंटेड ग्लासेस यूज करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे पास देयर इज समथिंग दैट इज प्रेजेंट ऑन द विंडो, जिसकी वजह से हमारे पास रिलेटिवली कम रोशनी जो है वो बाहर आ रही होती है, और जो रोशनी है वो हमारा जो भी मटेरियल है वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है। हैव यू गाइस ऑब्जर्व दिस कि हमारे पास इफ वी ऐड एन एडिशनल लेयर ऑन अ विंडो, लेस लाइट इज एबल टू बी ट्रांसमिटेड, या तो वो ब्लॉक हो रही होगी, रिफ्लेक्ट हो रही होगी या एब्जॉर्ब हो रही होगी।
इज दैट अंडरस्टैंडेबल? परफेक्ट। सिमिलरली हम जब कोई कलर्ड सॉल्यूशन डालते हैं, कलर्ड सॉल्यूशन कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है? और जब वो एब्जॉर्ब कर रही होगी तो ऑब्वियसली हमारे पास लेसर लाइट वुड बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस इट। नाउ हाउ इज दैट रेलेवेंट टू दिस एक्सपेरिमेंट? नाउ हमारे पास डीसीपीआईपी का क्या कलर होता है? कैन यू ऑल टेल मी? अब तक तो याद हो जाना चाहिए डीसीपीआईपी का कलर सबको। ब्लू होता है, वेरी गुड। अच्छा, और हमारे पास क्लोरोप्लास्ट सस्पेंशंस भी हैं, तो हमारे पास कुछ अजीब सा ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर होगा। लेट्स, बिकॉज आई डोंट हैव अ बेटर कलर ऑप्शन, सो बस आप ये समझो कि ये ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर है। नाउ कैन यू टेल मी, हमारे पास जो कलर चेंज होता है वो कलर चेंज डीसीपीआईपी का होता है या क्लोरोप्लास्ट का कलर चेंज होता है? What thing between the chloroplast or the DCPIP would undergo a color change when light dependent reaction takes place? Very good. So, as the light dependent reaction progresses, मेरे पास जो DCPIP है उसका कलर चेंज होगा। सो हम वापस से ऑब्जर्व क्या कर रहे होंगे? हमारी ग्रीन सस्पेंशन, ग्रीन सोल्यूशन ऑब्जर्व कर रहे होंगे, और हमारे पास होता क्या है कि जो ये DCPIP है ना, this is basically absorbing light. And if this DCPIP is decolorized, हमारे पास less light is absorbed, because DCPIP का जो कलर है, जो ब्लू कलर है जो एब्जॉर्ब कर रहा था लाइट को, वो डिकलराइज हो गया। इज दिस मेकिंग सेंस? दैट जब DCPIP होगा, यानी अपने ब्लू फॉर्म में होगा, सो वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा लाइट को, या वो एक तरह से क्या कहते हैं, लेसर लाइट वुड बी पासिंग क्रॉस इट। But once the DCPIP decolorizes, हमारे पास less light would be absorbed, because जो DCPIP का color है वो clear होता जा रहा है। Are you guys making sense of it? What is happening over here? अभी तक इस point पर why is it green? It is green because हमारे पास क्लोरोप्लास्ट present है ना। क्लोरोप्लास्ट का क्या कलर होता है? ग्रीन present होता, सॉरी ग्रीन कलर होता है ना। सो ओरिजिनली क्या था? ओरिजिनली भी वी स्टार्टेड ऑफ विद समथिंग ग्रीन, उस पे हमने क्या ऐड किया? हमने ऐड कर दिया ब्लू DCPIP, तो हमारे पास कुछ ब्लू ग्रीन का मिक्सचर हो गया। अब जैसे जैसे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा, वैसे वैसे हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बनेंगे। बिकॉज ऑफ द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, हमारे पास प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे थ्रू द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और जितना ज्यादा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होगा उतना ज्यादा फोटोलिसिस होगा। जितना ज्यादा फोटोलिसिस होगा उतने ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा होगा। And these protons and electrons are accepted by the DCPIP and it gets reduced. And the reduced DCPIP becomes colorless or it gets decolorized. हमारे पास जब DCPIP कम हो गया है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो absorbance हो रही थी by the DCPIP blue solution, that DCPIP blue solution is now no longer present, and hence there is a lesser absorption now. Let me go through the chat. हमारे पास देखो, हमारे पहले फोटोलिसिस होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा। फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे टू रिप्लेस द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द फोटोसिस्टम टू। फोटोसिस्टम 2 से फिर ETC में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ETC से फिर फोटोसिस्टम 1 में जाएंगे। फोटोसिस्टम 1 में जब इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज आवर NADP reductase, which combines NADP with protons and electrons. So NADP reductase is our final electron acceptor. जिस तरह से NADP हमारे पास फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, उसी तरह से जो DCPIP है, इट इज एन आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सो अगर हमारे पास NADPH बन रहा है, NADPH कब बनता है? जब हमारे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, राइट अमर? आर यू विद मी? नाउ हमारे पास जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रही है, उसी में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिल रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स NADP एक्सेप्ट करके रिड्यूस्ड NADP बन सकता है,
और वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमारे पास डीसीपीआईपी एक्सेप्ट करके डीकलराइज भी हो सकता है। सो अगर डीसीपीआईपी डीकलराइज हो रहा है, इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ज्यादा हो रहा है। जितना ज्यादा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बनेंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बनेंगे उतनी ज्यादा हमारे पास डीकलराइजेशन हो रही होगी। व्हाई? Because the DCPIP is getting reduced and the reduced DCPIP is colorless. अब Yes. जिसको अभी तक कुछ समझ नहीं आया या अभी भी कोई एम्बिग्विटी है, प्लीज ओपन योर माइक एंड आस्क मी। Yes, can you hear me? यस यस। Yes, ये जो NADPH है, does हम्म it act like NAD जो NAD plus और FAD plus जो हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था, हाइड्रोजन कैरियर? बिल्कुल, हमारे पास जैसे NAD प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके रिड्यूस्ड NAD यानी कि NADH बन जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जो हमारे पास NADP है वो भी एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करके रिड्यूस्ड NADP या फिर NADPH बन जाता है। सो वही फिनोमेना यहाँ पर भी है। फर्क क्या है? वो NAD था जो कि NADH बन रहा था, यहाँ पर NADP है जो कि NADPH बन रहा है। ठीक है। My question is कि पहले Na जो फोटोलाइसिस होती है वाटर की, जो हम्म H plus और इलेक्ट्रॉन बनता है, so from that we make the NADPH first and then after that we use that to reduce the DCPIP. देखो, हमारे पास फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ, ठीक है, ये वाटर बन गया प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैं बैलेंसिंग नहीं करी, बस समझ जाओ कि हमारे पास, बल्कि चलो कर देती हूँ, दो प्रोटॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एक वाटर मॉलिक्यूल से, और हमारे पास हाफ अ मोल ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। नाउ ये प्रोटॉन्स कहाँ गए? ये प्रोटॉन्स आपके चले गए फोटो सिस्टम 2 में, फोटो सिस्टम 2 से ईटीसी, ईटीसी से फोटो सिस्टम 1 एंड इवेंचुअली एनएडीपी रिडक्टेज जो हमारे पास एंजाइम है वहां पर चले गए। और एनएडीपी रिडक्टेज क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन कर देगा एनएडीपी के साथ और प्रोटॉन्स टू फॉर्म रिड्यूस्ड NADPH। ये कब हो रहा है? जब हमारे पास फोटो एक्टिवेशन हो रही है, फोटोलिसिस हो रहा है, पूरा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यही है हमारा। इज दैट करेक्ट? एंड टू द रेस्ट ऑफ यू Yes, miss. ना, हमारे पास जब भी फोटो एक्टिवेशन होगी, फोटोलिसिस होगी, ये चीज होगी, हमारे पास सिस्टम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। जिस तरह प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ये NADP एक्सेप्ट करके रिड्यूस्ड NADPH बन सकता है, अगर मैं सिस्टम में एक रिडॉक्स इंडिकेटर ऐड कर दूं जैसे कि DCPIP, सो दैट DCPIP कैन ऑल्सो एक्सेप्ट these protons and electrons to form reduced DCPIP जो कि कलरलेस होता है। सो मेरे पास जब फोटोलिसिस होगा और सिस्टम में DCPIP है, सो वो जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है वो NADPH भी बना रहे होते हैं, यानी रिड्यूस्ड NADP बना रहे होते हैं और रिड्यूस्ड DCPIP बना रहे होते हैं। हम DCPIP डाल ही इस वजह से रहे होते हैं टू चेक वेदर हमारे पास अगर रेस्पिरेशन है तो रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। और अगर हम फोटोसिंथेसिस के एस्पेक्ट से देखें तो फोटोसिंथेसिस में हमें पता है जब फोटोलिसिस होता है तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। तो DCPIP हमें ये बताता है, कंफर्म करता है वेदर फोटोलिसिस, वेदर द लाइट डिपेंडेंट स्टेज हैज टेकन प्लेस और नॉट। सो इट्स अ कॉन्फर्मेशन, क्योंकि हमें ये सब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बट हाउ कैन वी ऑब्जर्व इट? हम तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं ना जब हमारे पास कोई ऑब्जर्वेबल डेटा हो। उस ऑब्जर्वेबल डेटा के लिए हम एक रिडॉक्स इंडिकेटर डालते हैं जिसके बारे में हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक्सेप्ट करेगा। और अगर DCPIP इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक्सेप्ट करेगा, इट वुड अंडरगो अ कलर चेंज एंड दैट कलर चेंज वुड कंफर्म कि हमारे पास फोटोलिसिस या आपका पूरा जो लाइट डिपेंडेंट स्टेज है दैट हैज टेकन प्लेस। इज दिस नाउ क्लियर? कोई क्वेश्चन है हमारे? अगर नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, फिर से पूछ लो। मुझे पता है एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो हम क्योंकि कर नहीं रहे होते तो समझना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आज की पूरी क्लास मुझे इस पे निकालनी पड़ी, मुझे कोई मसला नहीं है, वी कैन गो ओवर इट अगेन एज वेल, नो इश्यूज। एंड बिहाइंड आई लीव अ कलरलेस और ग्रीन सोल्यूशन आफ्टर फोटो, आफ्टर द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। यस अनका, हमारे पास जब DCPIP डीकलराइज हो जाता है या वापस से ओरिजिनल क्लोरोप्लास्ट की कलर पे चला जाता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस हैज टेकन प्लेस।
ठीक है, अब अंडरस्टैंड, ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमें समझ आ गया, राइट? अब इसको हम इससे कैसे रिलेट करें ग्राफ से? द कंफ्यूजन पता है क्या आ रही है? कंफ्यूजन ये आ रही है कि उन्होंने एक्चुअली जानबूझ के, शायद ये टेस्ट करने के लिए कि आपको एब्जॉर्बेंस और कलरीमेट्री का अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है, they have given a statement that says the absorbance of each chloroplast suspension was measured at 1 minute intervals using a colorimeter. इससे कंफ्यूजन पता है क्या जनरेट हो रही है? कंफ्यूजन ये जनरेट हो रही है कि जो एब्जॉर्बेंस हो रही है, लाइट जो एब्जॉर्ब हो रही है, वो एब्जॉर्बेंस क्लोरोप्लास्ट की दिखा रहे हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है. Is there anybody who thinks that this is what the graph is telling? And if you think it this way, that's completely fine. Tell me. Absorbance के ग्राफ से क्या समझ आ रहा है? कि ये क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को या सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर रही है? What is your understanding? I want every one of you to answer this question of mine. ये एब्जॉर्बेंस किसकी है? अच्छा ठीक है मान, what about the rest? I want all of you to answer me. प्राइमर सॉल्यूशन की तो है, बिल्कुल सॉल्यूशन की है. सॉल्यूशन में आपके पास एक चीज है क्लोरोप्लास्ट, एक चीज है डीसीपीआईपी. उस रिस्पेक्ट से बताओ, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो फिर हम क्लोरोफिल के एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं. डीसीपीआईपी की अगर बात करें, व्हाई वुड क्लोरोप्लास्ट क्या लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता? अगर क्लोरोप्लास्ट लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे कर सकता है, फोटोलिसिस कैसे कर सकता है? सो क्लोरोप्लास्ट इज एब्जॉर्ब. यहाँ पर दो चीजों की बात, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ दैट दिस इज वेयर द कंफ्यूजन आई थिंक सो इज अराइजिंग, कि कुछ लोगों को लग रहा है ये क्लोरोप्लास्ट का ग्राफ है, कुछ लोगों को लग रहा है डीसीपीआईपी का ग्राफ है. ठीक है, दोनों चीजें अगर लग रही हैं, perfectly fine. I'm here to clear that confusion. That is why I'm asking किसको क्या लग रहा है, उस हिसाब से I will explain. Okay, so actually, so there are some people who are saying DCPIP, some are saying chloroplast. You did not understand the question. Okay, अहमद, हमारे पास एक absorbance का ग्राफ है, ठीक है? Absorbance with respect to each light, right? My question is कि जो ये हमें एब्जॉर्बेंस बता रहे हैं कि ग्रीन लाइट 1.5 या 1.44 यूनिट्स एब्जॉर्ब हुई है, ब्लू लाइट 0.9% एब्जॉर्ब हुई है, रेड लाइट 1.5 से 0.7 यूनिट्स एब्जॉर्ब हुई है, ये किस चीज की एब्जॉर्बेंस है? क्लोरोप्लास्ट की एब्जॉर्बेंस बता रहे हैं या फिर डीसीपीआईपी की एब्जॉर्बेंस बता रहे हैं? ओके, ठीक है, परफेक्ट. ना, हमारे पास एब्जॉर्बेंस जो है वो चेंज हो रही है, राइट? ओवर टाइम चेंज आ रहा है. इफ यू वी कैन सी कि हमारे पास जो ग्राफ है दैट्स चेंजिंग एंड इट्स चेंजिंग फॉर ऑल थ्री ऑफ देम, राइट? तो हमारे पास क्या क्लोरोप्लास्ट का नेचर चेंज हो रहा होगा या डीसीपीआईपी का चेंज हो रहा होगा? डीसीपीआईपी का चेंज हो रहा होगा ना, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट तो एज इट इज वही है. हम क्लोरोप्लास्ट को तो थोड़ी चेंज करें. क्लोरोप्लास्ट के जो पिगमेंट्स हैं, उनका जो नेचर है, उनका जो बिहेवियर है, वो तो कांस्टेंट होगा, राइट? हमने कल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम्स पढ़े थे कि हर क्लोरोफिल पिगमेंट का अपना एक स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन होती है. सो हमारे पास जो ये चेंज आ रहा है, वो चेंज किस चीज का आ रहा है? डीसीपीआईपी का चेंज आ रहा है. क्यों डीसीपीआईपी का चेंज आ रहा है? सी, हमारे पास एक चीज थी जो इनिशियली, सॉरी, एक चीज थी जो इनिशियली 1.5 यूनिट्स एब्जॉर्ब करी थी, ठीक है? इट वाज एब्जॉर्बिंग 1.5 यूनिट्स ऑफ ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ लाइट. बट ओवर टाइम हम देख रहे हैं कि रेड लाइट की जो एब्जॉर्बेंस है वो डिक्रीज हो रही है. एब्जॉर्बेंस अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ओवर टाइम, पहले क्या था, पहले लेट्स से हमारे पास जो रेड लाइट थी वो इतनी ज्यादा जा रही थी, लेट्स से 3 rays of lead light were passing and only, let's say, one ray was coming out. बाकी सारी जो रेड लाइट थी that was absorbed by the solution. However, after 4 minutes हमारे पास हम उतनी ही लाइट एक्सपोज कर रहे हैं, बिकॉज हम लाइट इंटेंसिटी चेंज नहीं कर रहे, बट आफ्टर 4 minutes लेट्स से हमारे पास ज्यादा लाइट ट्रांसमिट हो रही है and less light is being absorbed by the solution. क्या यही हो रहा है? क्या ग्राफ हमें यही बता रहा है? Do you all agree that this is what is happening over time for red light? Okay.
Now, if that is happening, definitely between 4 minutes, something has changed about the solution. Now, हमारे पास when we added DCPIP and chloroplast, उससे पहले हमने क्या किया था, हमने थोड़ी देर डार्कनेस में रखा था, तो इससे पहले हमारे पास कोई लाइट रिएक्शन नहीं हो रहा था. हमारे पास 0.0 पे DCPIP और उसकी सोल्यूशन है, क्लोरोप्लास्ट की सोल्यूशन है. नाउ ओवर टाइम हमारे पास जो ये DCPIP है वो डीकलराइज हो गया होगा. And because the DCPIP has been decolorized, there is a lesser absorption of the light because the DCPIP has been decolorized. Now, if the decolorization is greater, that means the rate of photosynthesis was also greater for the red light. Is this making sense? कि हमारे पास जो एब्जॉर्बेंस चेंज हो रही है वो इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि हमारे पास DCPIP डीकलराइज हो गया. DCPIP का कलर चेंज हो गया. जो ब्लू कलर रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था वो ब्लू कलर अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या अगर कर रहा है तो बहुत मिनिमल अमाउंट में कर रहा है. ऑन द कॉन्ट्री ग्रीन लाइट में क्या हो रहा है, ग्रीन लाइट में हमारी एब्जॉर्बेंस चेंज नहीं हुई है. यानी कि अगर हमारे पास पहले majority of the green light was being absorbed by DCPIP and only a few rays were transmitting through it, after 4 minutes, nothing much has changed. And if nothing much has changed, that means that the DCPIP has not decolorized a lot. And if DCPIP has not decolorized a lot, the rate of photosynthesis was minimum. That means that the green light does not cause a lot of photoactivation or a lot of light dependent reactions. Is this now clear? So in Yes. red light, there is a greater rate of photosynthesis because there is more color change of DCPIP. The DCPIP is getting reduced greatly. GMR, क्या question है? Yes, but I mean like the green light जो है वो ज्यादा absorb नहीं करेगी. कौन ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, DCPIP ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है या क्लोरोप्लास्ट ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है? DCPIP. DCPIP ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि हमारे पास DCPIP ब्लू कलर में ज्यादा है, तभी ग्रीन लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है वो. इज दैट करेक्ट? हाँ, maybe. हमारे पास देखो, हमारे पास अगर मेरे पास DCPIP अगर डीकलराइज हो जाएगा, क्लियर हो गया है, तो मेरे पास लाइट आराम से मूव कर सकती है, ज्यादा लाइट ट्रांसमिट होगी और कम एब्जॉर्ब होगी, यही होगा इफ द DCPIP हैज डीकलराइज्ड. Yes. अगर DCPIP हमारा कलराइज डीकलराइज हो गया, इसका मतलब है लेस लाइट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बिकॉज देयर इज लेस DCPIP प्रेजेंट इन द ब्लू फॉर्म एंड मोर ऑफ द लाइट इज ट्रांसमिटेड. एब्जॉर्बेंस कम हो गई है, ट्रांसमिशन लाइट की ज्यादा हो गई है क्योंकि हमारे पास जो सोल्यूशन का ब्लू कलर है वो डीकलराइज हो गया है. ठीक है. ग्रीन लाइट में हमारे पास DCPIP ज्यादा ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है. ज्यादा ग्रीन लाइट अगर एब्जॉर्ब हो रही है और ट्रांसमिट नहीं हो रही, इसका मतलब है कि हमारे पास DCPIP ब्लू कलर में प्रेजेंट है, यानी कि वो रिड्यूस नहीं हुआ है, फोटोसिंथेसिस या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इतना ज्यादा नहीं हुआ है. इज दिस नाउ क्लियर? Yes, miss. ओके, बताया, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. कंफ्यूजन क्या है, हाउ एब्जॉर्बेंस एंड फोटोसिंथेसिस रिलेट. अच्छा जी, हमारे पास फोटोसिंथेसिस में एब्जॉर्प्शन होती है लाइट एनर्जी की बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट्स. इज दैट करेक्ट? राइट. एंड हमारे पास उसकी वजह से फोटो एक्टिवेशन होती है, फोटोलिसिस होता है, पूरा हमारे पास प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में वी हैव प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. राइट, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं. हमारे पास अगर ज्यादा प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे तो ज्यादा जल्दी DCPIP डीकलराइज होगा. इज दैट करेक्ट? नाउ अगर DCPIP डीकलराइज हो गया है, उसका कलर चला गया है, तो हमारे पास जो लाइट है वो कम एब्जॉर्ब करेगा DCPIP
या वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा डीसीपीआईपी? या ऐसे कहो, अगर डीसीपीआईपी डीकलराइज हो गया है तो हमारे पास लाइट जो एब्जॉर्ब हो रही है या जो लाइट ब्लॉक हो रही है वो कम ब्लॉक हो रही है या ज्यादा ब्लॉक हो रही है? इफ द डीसीपीआईपी इज डीकलराइज्ड, हमारे पास मोर लाइट क्यों ब्लॉक हो रही है? लाइट के पास तो अब आराम से पाथ है ना क्लियर सॉल्यूशन के थ्रू जाने का, है ना? सो हमारे पास यहाँ पर जो ये ग्राफ है, कम ब्लॉक, बट हाउ वुड दैट अफेक्ट एब्जॉर्प्शन? अच्छा, ये ब्लू सॉल्यूशन है डीसीपीआईपी की, ठीक है? अगर आप एक ब्लैक सरफेस के थ्रू लाइट को भेजोगे, सो लाइट एब्जॉर्ब ज्यादा होगी या ट्रांसमिट ज्यादा होगी? राइट। सो मेरे पास जो ब्लू सॉल्यूशन है, मोर लाइट एब्जॉर्बेंस, और मेरे पास डीसीपीआईपी जब डीकलराइज हो जाएगा, डीकलराइज्ड सॉल्यूशन, और हम लाइट भेजेंगे, तो मेरे पास एब्जॉर्बेंस कम होगी या ज्यादा होगी? लेस लाइट इज एब्जॉर्ब्ड एंड मोर इज ट्रांसमिटेड? यस अमार, बिल्कुल। तो हमारे पास जब डीकलराइज हो जाएगा तो लाइट ज्यादा, क्या कहते हैं, ट्रांसमिट हो रही होगी और कम एब्जॉर्ब हो रही होगी। तो जो हमारे पास ये डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन है वो हमारे पास डीसीपीआईपी सॉल्यूशन का है। और ये देखो यहाँ पे, अब मैंने सबको समझ आ गया, आई एम अज्यूमिंग, तो अब हम कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। एब्जॉर्बेंस का क्या मतलब होता है? मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट दैट passes थ्रू अ लिक्विड और सॉल्यूशन। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास लिक्विड और सॉल्यूशन है, क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनील, ठीक है? Colorimeter is able to measure light absorbance or light transmission. A colorimeter can be used to observe or analyze reactions that involve color changes. As the color breaks down, the transmission of light increases or the light absorption decreases. Light absorption decrease होगी, इसका मतलब है कि हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, रिएक्शन हमारे पास इज टेकिंग प्लेस। सो हमारे पास जितना जल्दी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो रही है उतना ज्यादा हमारे पास वहां पर रिएक्शन हुआ होगा। इज दिस नाउ क्रिस्टल क्लियर टू ऑल? कलर ब्रेक्स और ट्रांसमिशन ऑफ लाइट क्यों ज्यादा हुई? मिस आई डिडंट गेट दिस पार्ट। एक यहाँ पे देखो जो मैंने ये ड्राइंग की हुई है, एक हमारे पास डार्क ब्लू या ब्लैक कलर की सोल्यूशन है, एक मेरे पास क्लियर सोल्यूशन है। ज्यादा लाइट कहाँ पर ट्रांसमिट हो रही होगी? ब्लू के थ्रू या कलरलेस के थ्रू? क्लियर के थ्रू? कलरलेस में ज्यादा ट्रांसमिट हो रही होगी, है ना? तो हमारे पास जब कलर चेंज हो रहा है, कलर ब्रेक डाउन कर रहा है, ब्लैक से कलरलेस हो रहा है, तो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट ज्यादा हो गई और एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट कम हो गई। इज दिस नाउ क्लियर? यस, ट्रांसमिशन का मतलब है कितनी लाइट गुजर रही है, एब्जॉर्बेंस का मतलब है कितनी लाइट हमारी सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर रही है, ब्लॉक कर रही है आगे जाने से। सही है, परफेक्ट। तो हमारे पास जितनी ज्यादा डीकलराइजेशन उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन में डिक्रीज आएगा। एब्जॉर्प्शन में डिक्रीज आया इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर ज्यादा फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ था, तभी जल्दी जल्दी हमारे पास प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बने होंगे, तभी जल्दी जल्दी हमारे पास डीकलराइजेशन हुई, तभी जल्दी जल्दी एब्जॉर्बेंस इतना स्टीपली डिक्रीज करी ऑफ डीसीपीआईपी बिकॉज इट गॉट डीकलराइज्ड। अब क्लियर हो गया है अज्यूम सबको? परफेक्ट। Okay. So, with reference to the light dependent stage of photosynthesis, explain the differences between the results shown in figure 7.1 for red light and green light. Now, हमारे पास जब रेड लाइट है, सो रेड लाइट causes more photolysis,
more protons and electrons are evolved, more light dependent reaction, faster decolorization of DCPIP. अगर with respect of green light लिखना है तो green light के लिए हम कहेंगे that green light causes less photolysis, less electrons and protons are evolved, less light dependent reaction, slower reduction of DCPIP और slower color change भी कह सकते हो. Is this now clear? अच्छा जी. Changes in the atmospheric carbon dioxide concentration, light intensity and temperature can affect the rate of photosynthesis. These three factors directly affect different processes of photosynthesis. Complete table 7.1 using a tick to identify the processes that can be directly affected by each factor, or a cross to identify the processes that are not directly affected by each factor. Indirect effects where a change in the rate of one process affects the rate of a different process should not be considered. तो कौन सी चीज डायरेक्टली किसी प्रोसेस को अफेक्ट करी हमने वहां पर टिक लगाना है, और इनडायरेक्टली अगर इफेक्ट करी तो वहां पर क्रॉस लगा देना है. Carbon dioxide concentration, would that directly affect Calvin cycle or would that indirectly affect Calvin cycle? Directly affect. Very good. What about photophosphorylation? Photophosphorylation, carbon dioxide, क्या they are linked आपस में? They are not. Light intensity. Does light intensity directly affect Calvin cycle? It does not directly affect Calvin cycle. Indirectly करती है बिल्कुल, but directly affect नहीं करती. Light intensity affects photophosphorylation. Obviously, light intensity would affect photophosphorylation. अच्छा जी, कैल्विन साइकिल में टेम्परेचर अफेक्ट करता है हमारे पास उसको. यस, बिल्कुल करता है. फोटोफॉस्फोराइलेशन में टेम्परेचर इफेक्ट करता है. अगेन यहाँ पर भी एंजाइम्स हैं, तो टेम्परेचर वुड इफेक्ट ऑल द एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शंस. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन. ओके, समझा देते हैं. हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन या कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास हमें कैल्विन साइकिल में चाहिए होती है या लाइट डिपेंडेंट स्टेट में चाहिए होती है? कैल्विन साइकिल में चाहिए होती है ना. इस वजह से कैल्विन साइकिल को हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अफेक्ट कर रही होती है. और फोटोफॉस्फोराइलेशन या लाइट डिपेंडेंट स्टेज में हमें नहीं चाहिए होती. मिस फोटोफॉस्फोरिलेशन के क्या स्टार्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं? जस्ट लाइट? सॉरी, आई वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, रहमा. जैसे केल्विन साइकिल के लिए वी से दैट वी नीड लाइक जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड द एटीपी यूज्ड एंड द एनएडीपीएच. तो फोटोफॉस्फोरिलेशन के क्या होते थे स्टार्टिंग प्रोडक्ट्स? लाइट चाहिए होती है और वाटर चाहिए होता है फॉर फोटोफॉस्फोराइलेशन. फॉर नॉन ओके. साइक्लिक हमें वाटर चाहिए होता है, साइक्लिक के लिए तो हमें वो भी नहीं चाहिए होता, उसमें तो खाली हमें लाइट चाहिए होती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके आमना, यू कैन स्टे बैक आफ्टर द क्लास, नो इश्यूज. अच्छा जी, क्वेश्चन हमारे पास अगला. Describe the functions of the internal membranes of the chloroplast in photosynthesis. Now, the sole reason why I chose this question is because of the statement. Describe the functions of the internal membranes of the chloroplast in photosynthesis. कौन सी internal membranes की बात हो रही है? What internal membranes of the chloroplast is this talking about? And it is a 7-mark question, so it's like one important heck of a question. So, what do you guys understand from this question? क्या expect कर रहा है हमसे? वेरी गुड. सो हमारे पास थाइलेकोइड, ग्राना, ऑल ऑफ दीज हमारे पास. थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो इंटरनली प्रेजेंट होती है ना, बिकॉज एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, फिर इनर मेम्ब्रेन होती है, और उसके बाद हमारे पास बहुत सारी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स होती हैं. वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स किधर है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर है ना. सो दो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स हमारे पास
Internal membranes you mean. So people can get confused when आप जब एग्जाम सिचुएशन में होते हो तो आप प्रेशर में काम कर रहे होते हो सो यू वुड बी लाइक इंटरनल मेम्ब्रेन्स है अच्छा आंख बंद करके पूरा क्रिस्टे की कहानी लिखती यहाँ पर द इंटरनल मेम्ब्रेन्स आर नॉट योर क्रिस्टे दे आर नॉट द फोल्ड्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया दीज आर योर thylakoid membranes. Okay. Now, if these are the thylakoid membranes, describe the functions of the thylakoid membrane of the chloroplast in photosynthesis. What would we be writing in this answer? हम किस बारे में या क्या explain करेंगे thylakoid के बारे में? Very good. So thylakoid membranes are the location of light-dependent reaction. And this is a 7 mark question. तो इसमें हम पूरा हमारा जो light-dependent reaction है, we would be describing that, we would be going over that. ठीक है? So, just because of this statement, I chose this question because this is how important it is to understand the question and not get confused because हो जाते हैं लोग confused and that's okay. That's why I'm here and helping you guys. अच्छा जी हमारे पास क्या होगा सबसे पहले we are gonna say site of light dependent reaction. And now that we say side of light dependent reaction, we would start describing everything that happens in a light dependent reaction. So हमारे पास अच्छा हमारे पास internal membranes की बात हो रही है फौरन से we would think of the thylakoid membrane का structure ये let's say thylakoid membrane है can you guys tell me thylakoid membranes पे क्या क्या चीजें present होती हैं जल्दी से list it down photosystems होते हैं very good so we have photosystems we have the stalked particle we have the ETC we have NADP reductase right और तो हम कुछ नहीं मिक्स कर रहे हैं हाँ फोटोसिस्टम में रिएक्शन सेंटर आ जाएगा ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है वेरी गुड साइड ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई अभी जो सारी चीजें हमारी थैलेकॉइड मेमोरी से प्रेजेंट है अगर हम एक एक करके इनका पूरा रोल इन द ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स एक्सप्लेन कर दें तो हमारे पास हमें आराम से हमारे 7 मार्क्स मिल जाएंगे क्यों क्योंकि 1 2 3 4 5 5 थिंग्स वी हैव आइडेंटिफाइड व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन अगर हम 5 थिंग्स का एक एक रोल लिखेंगे वी वुड हैव व्हाट वी वुड हैव 6 marking points दिस वे सो brainstorming is very important or planning is very important for a 7 or an 8 marker question whenever you're attempting your theory paper. So it is the site of the light dependent reaction. The photosystems on the thylakoid membrane absorb light energy and transfer it to chlorophyll A, resulting in photoactivation. The electrons lost as a result of photoactivation enter or are picked up by the ETC as they move across ETC, energy is released, which is used to pump protons into the thylakoid space
a proton gradient is established. The protons move down the electrochemical gradient to the stop particle, causing ATP synthase to combine ADP and inorganic phosphate. NADP reductase accepts electrons and protons to produce. NADP reductase combines electrons and protons with NADP to form NADPH. कितने marking points हो गए? 1 2 3 4 5 6 7. And you can also talk about the oxygen evolving complex. So we actually have more marking points than the required number of the marks. ठीक है, इतनी देर में आप लोग बोर तो नहीं हुए जितनी देर में मैं आप लोगों के लिए आपका आंसर लिख रही थी? Any questions about this? So ये हर पॉइंट जो है ना, दैट इज अ मार्किंग पॉइंट. तो मैंने लिखा ही पॉइंटर्स की फॉर्म में है, बाकी मैं और ऑब्वियस कर दूंगी वंस मैं देख लूंगी. तो फाइल मैच इट विद द मार्क स्कीम. अगर मुझे लगेगा कि मैंने कोई मार्किंग पॉइंट मिस कर दिया है तो वो जब मैं नोट सेंड करूंगी तो उसमें ऐड होगा. बट आई थिंक सो दीज आर लाइक मोर मार्किंग पॉइंट्स देन 7. ये 7 से ज्यादा ही मार्किंग पॉइंट्स हैं ये सारे. सो दिस वुड बी सफिशिएंट फॉर यू टू राइट इन अ 7 मार्कर. ठीक है, ये आखिरी पार्ट है, आखिरी क्वेश्चन, एंड देन आप लोगों को मैं आजाद कर दूंगी फ्रॉम माय बायोलॉजी क्वार्टर. We have to write it in a paragraph form. Pointers की फॉर्म में तो मैं इसलिए लिख देती हूँ आप लोगों के लिए so that you know कि marking point क्या है. But CI expects you to write in essay form or a paragraph form. And मैंने किसी के पेपर में लिखा हुआ भी है, किसी ने pointers की फॉर्म में एक आंसर लिखा था. So I wrote over there that it is preferred to write your answer in sentences because it's a theory paper. That's it. Now, do you guys have a class at 8:30 with Sarohab? Just in case I'm taking up that time. 8:40 पे, बस जल्दी से 5 मिनट में I'll wrap this up. एक ही क्वेश्चन रहता है. बल्कि वेट, सरोहाब मेरी अक्सर क्लास डिले करता है ना, मैं आज उनसे बदला लूंगी. वेट, मैं आप लोगों की क्लास डिले करवा रही हूँ 10 मिनट. आज जी जल्दी से फिनिश करते हैं. Rubisco activase is an enzyme that has an effect on the activity of Rubisco. An investigation was carried out on the effect of Rubisco activase on the activity of Rubisco. So there is an enzyme Rubisco activase जो कि influence करती है हमारे Rubisco को. Now mind you, Rubisco is also an enzyme. This is an enzyme and this is also an enzyme. However, Rubisco activase is affecting the activity of Rubisco as well. An investigation was carried out on the effect of Rubisco activase on the activity of Rubisco. Solutions of Rubisco and RUBP were added to two tubes A and B. RA was added to test tube A. So ये हमारे पास test tube A है. अब इस test tube A में क्या है? RUBP है, Rubisco है और Rubisco activase है. और test tube B में हमारे पास RUBP और Rubisco है. So RA was added to tube A and
both tubes were incubated at 25 डिग्री सेल्सियस for 6 minutes. हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि दोनों का जो टेम्परेचर हो, टेस्ट ट्यूब ए का भी और टेस्ट ट्यूब बी का भी, दैट इज सेम. सो 25 डिग्री सेल्सियस here, 25 डिग्री सेल्सियस here, ताकि टेम्परेचर दोनों का अगर डिफरेंट होगा तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा. सो वी नीड टू इंश्योर दैट बोथ टेस्ट ट्यूब्स are at the same temperature. The activity of Rubisco was measured every 30 seconds. All conditions were kept the same except for the addition of Rubisco activase to tube A. The results are shown in figure 8.1. तो यहाँ पे हमने Rubisco activase add किया. Describe the results shown in figure 8.1 and suggest an explanation for the effect of Rubisco activase on the activity of Rubisco. 4 marks का question है. 1 mark describe का या 2 mark describe के होंगे और 2 marks explanation के या 3 marks explanation के होंगे. So this would be the mark division. Describe है. Describe में कोई biology नहीं जाननी, हमें खाली explain करना है. So what can we see? The trend that we can see is that in graph A, जिसमें हमने Rubisco activase add की थी, it increases the rate of Rubisco activity over time, whereas test tube B, which did not have Rubisco activase, उसका जो rate of Rubisco activity था, that was minimum and that was constant over time. Is this thing clear? So describe में हम क्या लिख देंगे? That graph A which has Rubisco activase increases with time, whereas the graph B stays constant. अब हमें इसकी देनी है explanation. Now, explanation. What do you guys think? क्या explanation हो सकती है? How is Rubisco activase influencing the Rubisco activity? It is also very self-explanatory as well. नाम में Rubisco activase की हमें एक marking point मिल जाएगा कि Rubisco activase क्या कर सकती है. It activates Rubisco. So one explanation is RA activates Rubisco. Now, एक्टिवेट करी रुबिस्को को. रुबिस्को एक एंजाइम है. एंजाइम क्या करती है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस बना रही होती है. सो अगर आरए एक्टिवेट करी रुबिस्को को, इसका मतलब है दैट इट helps in more ES complexes or faster ES complexes to be made. Yes, totally. हम coenzyme भी कह सकते हैं that Rubisco activase is acting as a coenzyme. So over here, हम क्या, एक तो हमने एक्टिवेशन की बात कर दी, किस तरह से एक्टिवेट करी है उसको इलैबोरेट कर देते हैं. दैट इट enables the ES complexes to be formed more easily or faster. And we can also say that it acts as a cofactor or coenzyme for Rubisco. Is this question clear? Any questions about this? Yes. ये coenzyme वाला part explain कर सकती हैं आप? ओके, कोएंजाइम क्या होती है? कोएंजाइम या कोफैक्टर हमारे पास बेसिकली फैसिलिटेटर्स होते हैं एक एंजाइम के. तो अगर वो अटैच हो जाते हैं एक एंजाइम के साथ, तो हमारी जो रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी है वो या तो बेटर हो जाती है या फास्टर हो जाती है. या अगर कोफैक्टर कोएंजाइम आके हमारी एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है तो वो एक्टिव साइट को और भी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री बना देता है टू द सबस्ट्रेट. ठीक है. मिस, पर जो हमने रेस्पिरेशन में जो coenzymes पढ़े थे, so that I mean like the hydrogen carrier वाला, हाँ हाँ.
पर वो आई मीन लाइक ये और वो डिफरेंट कैसे हैं? यू और वो डिफरेंट कैसे हैं? हमारे पास देखो, को फैक्टर्स क्या होते हैं? को फैक्टर्स मिनरल्स हो सकते हैं, ठीक है, मेटल्स हो सकते हैं। को एंजाइम्स हमारे पास क्या कहते हैं? अच्छा देखो, दिस इज बेसिकली अ सजेस्ट क्वेश्चन। सो ये आपका ये जो पॉइंटर आई थिंक सो मुताहिर ने दिया था एंड वो एमएस में भी है। हमारे पास को फैक्टर और को एंजाइम्स हम एएस में पढ़ते हैं, और को फैक्टर्स एंड को एंजाइम्स को हम सिंपली ऐसे डिस्क्राइब करते हैं दैट दे इनहेंस द activity of the enzyme, or they activate the enzymes activity, यानी वो enzymes को activate करते हैं, या फिर वो active site को और ज्यादा complementary बना देते हैं towards the substrate। बिकॉज ये डेफिनेशन एएस से बच्चा पढ़ के आ रहा होता है कोफैक्टर कोएंजाइम की, तो आप अगर इसको यहाँ पर लिखोगे सो कैम्ब्रिज एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उन्हीं ने अपने थर्ड चैप्टर में, एंजाइम्स के चैप्टर में, कोफैक्टर और कोएंजाइम को ऐसे डिस्क्राइब किया होता है दैट दे एक्टिवेट एंजाइम्स। ये नेसेसरली करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भी नहीं इस चीज की, बट बिकॉज स्टूडेंट इज कमिंग विद दिस प्री requisite knowledge that cofactors and coenzymes are activating an enzyme, तो इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने अपनी प्रीवियस एएस नॉलेज से लिंक कर दिया। जरूरी नहीं है कि ये बात सही हो कि कोफैक्टर और कोएंजाइम हो रुबिस्को एक्टिवेज, बट बिकॉज इट इज समथिंग दैट दे हैव स्टडीड इन एएस, कैम्ब्रिज वुड बी नाइस इनफ टू एक्सेप्ट दिस पॉइंट। इज दिस क्लियर? यस मिस। ओके, अच्छा, एनी क्वेश्चंस गाइस किसी भी क्वेश्चन को लेकर? अच्छा, अबाउट दिस कलरीमेट्री वाला क्वेश्चन, ये वाला जो ग्राफ है, आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस वंस विद सर, क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट्स और इन सब चीजों से बहुत गहरा ताल्लुक है एंड ही इज वेरी गुड एट इट। सो मेरे दिमाग में कंफ्यूजन मुझे खुद क्रिएट हुई है। सो आई वुड कंफर्म दिस क्वेश्चन एंड डिस्कस दिस क्वेश्चन विद हिम, और कल हम ये क्वेश्चन फिर से डिस्कस करेंगे, बिकॉज आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम सर। व्हाट्स द एब्जॉर्प्शन ऑन द वाई एक्सिस? सॉरी, इधर ये वाली चीज पूछ रहा हूँ मैं शायद। एब्जॉर्बेंस का मतलब ये है कि हमारे पास कितने यूनिट्स ऑफ लाइट हैव बीन एब्जॉर्ब्ड बाय अ सॉल्यूशन। यानी कि फॉर एग्जांपल, ये दिखाना बेटर होगा। लेट्स डू वन थिंग, ये जो एब्जॉर्प्शन वाली चीज है ना, ये मैं कोई यूट्यूब पे अच्छी सी वीडियो ढूंढती हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज इट्स लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक टेस्ट ट्यूब, ऐसा समझो हमारे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, लेट्स से दिस इज अ सोल्यूशन, ठीक है, और ये सोल्यूशन में कोई कलर है, और यहाँ पर लेट्स से मैं रेड लाइट पास कर रही हूँ, ठीक है, मैं रेड लाइट पास कर रही हूँ। अब ये जो रेड लाइट है, ये देखो कितनी डार्क है। अब जब ये पास हुई, सो लेट्स से इतनी बाहर आई, ये चेंज इन कलर क्यों हो रहा है? ये चेंज इन कलर इसलिए हो रहा है कि कुछ लाइट इस सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर ली। सो एब्जॉर्बेंस हमें ये बताती है कि एक सॉल्यूशन या एक सस्पेंशन या एक लिक्विड कितने यूनिट्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। इज दिस नाउ क्लियर?